معاشی استحکام کے لیے بڑا فیصلہ، 10 بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے اعلان کر دیا، سٹیل، سیمنٹ، شوگر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس شامل، ہوابازی، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینلز، بینکنگ سیکٹر، کیمیکل، بیوریجز اور سگریٹ انڈسٹری بھی فہرست کا حصہ۔ ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والوں پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ سالانہ 15 کروڑ سے زائد آمدن پر 1% اور 20 کروڑ سے زائد انکم پر 2% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 25 کروڑ آمدن پر شرح 3 اور 30 کروڑ پر 4% مقرر۔ پاکستان کو ان سنگین خطرات سے بچانے کے لیے یہ قومی اتحادی حکومت کے تمام زعماء نے مل کر مشاورت کر کے جرأتمندانہ فیصلے کیے، جس سے یقیناً شارٹ ٹرم میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ پاکستان قائد اعظم کی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ اقتدار سنبھالا تو 2 ہی راستے تھے، ریفارمز کر کے الیکشن کراتے یا سخت فیصلوں سے ملکی معیشت سنبھالتے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے۔ سابق دور میں بدترین کرپشن ہوئی، معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، اب ملک مشکلات سے نکل رہا ہے۔ سخت اقدامات کے سبب وقتی مشکلات ہیں مگر جلد آسانیاں بھی ہوں گی۔ عوام کو سبز باغ نہیں دکھائیں گے، کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ کوئی نئی شرط نہ لگی تو IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا معاشی ٹیم کے اجلاس میں اظہار خیال۔ ایران سے بجلی کا معاہدہ طے پا گیا، تفصیلات منگل کے روز کابینہ کے سامنے لائیں گے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل اولین ترجیح، وفاقی حکومت نے صوبے کے لیے 100 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے۔ گوادر میں انفراسٹرکچر کی بہتری تک ترقی کے معنی ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، ماہی گیروں کے لیے 2000 انجن اور رہائشی کالونی کا اعلان۔ پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں، ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے۔ 3000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان مانا ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے۔ اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا، FBR سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس یہ پیسے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے PTI والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ چھوٹے تاجروں اور ریسٹورنٹس پر بھی فکس ٹیکس لگانے کا اعلان۔ اخراجات زیادہ، وسائل کم ہیں، خسارہ پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے پیسے مانگنا پڑتے ہیں۔ عمران حکومت نے 4.25 سال میں 71 برس کے برابر قرضہ لیا۔ اتحادی حکومت کے مشکل فیصلوں سے پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، چینی کنسورشیم کی جانب سے $2.3 ارب اسٹیٹ بینک کو موصول۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں قدر 25 پیسے بڑھ گئی، 207 روپے 48 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے کمی کے ساتھ 208 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ۔ سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، انڈیکس 1665 پوائنٹ گر گیا، 41,045 پر بند۔ پہلا 1 مہینے میں ہی 100 بلین جو آپ نے کہا ہوا تو وہ تو آپ ESDP سے نکال دیتے تو آپ بڑھا دیتے۔ دیوالیہ بالکل نہ ہوتا۔ دیوالیہ تو آپ کی جو انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے، انکمپٹنس ہے، اس کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا۔
सुपर टैक्स के नफाज से महंगाई बढ़ेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को गुमराह करने में मसरूफ। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। पीटीआई दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई, मौजूदा हुकूमत की नाहरी से मुल्क दिवालियापन के खतरे से दो चार है। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। इमरान खान के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब बढ़े। मौजूदा मौशी टीम आवाम को कम चाय पीने के मशवरे दे रही है। असद उमर की तनकीद। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए पीटीआई ने बिछाई थी, हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकले। जो पैसा कमाता है वो टैक्स भी दे, खुदा का वास्ता है। अरकान असम्बली टैक्स चोरों के सिफारिशी ना बने। तहरीक इंसाफ की बिछाई सुरंगें उबूर कर ली हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को संभाल लिया। मुश्किल हालात में ऐसा बजट दिया जिसमें हर तबके के लिए रिलीफ है। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। हमने 3 महीने गैर आईनी हथकंडों का मुकाबला अल्लाह के फजल से किया, लेकिन हमने जो मुकाबला किया, हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की। किसी हठधर्मी और अना की परवाह नहीं, आवाम की खिदमत और तरक्की का अज़्म लेकर आए हैं। 3 माह गैर आईनी हथकंडों का मुकाबला किया। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें भी की गई। सूबे में पैदा किए गए आईनी बहरान की मिसाल नहीं मिलती। बजट का अमल भी हठधर्मी की नज़र हो गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का असम्बली में इजहार ख्याल। चौदह नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म की जा रही हैं इस कानून के मुताबिक। हर यूनियन काउंसिल 1 साल के अंदर 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अपना फैसले किया करेंगी बगैर किसी से पूछे। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली ज़रूरी। नए बल्दियाती एक्ट से मुकामी इदारे मजबूत होंगे। हर यूनियन काउंसिल अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। नून लीग कानून साजी में जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के इल्जामात। 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का 5-5 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इमरान खान और उनके साथी जिनमें बिलखसूस फवाद चौधरी, वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। कहते ये कि न्यूट्रल किसको कहते हैं? फौज को कहते हैं। कह ये रहे हैं कि फौज का भी और अदलिया का भी सियासी किरदार है। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि अगर ये किरदार है तो ये हुकूमतों के बनाने और गिराने के बाइस हैं। तो ये तो सीधी सीधी आर्टिकल 6 है। फवाद चौधरी कह रहे हैं फौज और अदलिया का भी सियासी किरदार है। इमरान खान इदारों पर मुसलसल हमलों में मसरूफ। सोशल मीडिया पर पीटीआई एक्टिविस्ट भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बयानात पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान न्याजी गिरफ्तारी के डर से खैबर पख्तूनख्वा में छुप कर बैठ रहे हैं। सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए। हुकूमत चली गई मगर इनकी हेरा फेरी नहीं गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पुरअमन एहतजाज सबका हक। इतवार के रोज लाहौर का अमन खराब करने की कोशिश हुई तो कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं। अता तारिक की वार्निंग। नून लीग पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली की कोशिशें कर रही है। तमाम हलकों में रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जारी। पीटीआई के कारकुनों को हरासा भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, यास्मीन राशिद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत।
PP 167 में बदअमनी से मुतालिक केस हल्के पर खास नजर है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, एक्शन बहुत सख्त होगा। उम्मीदवारों को समझा दें, कुछ भी गलत किया तो नताइज इंतहाई संजीदा होंगे। केस निपटाने तक नताइज भी जारी नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। दोनों उम्मीदवारों की वीडियोज के फोरेंसिक की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद, पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। इंतजामात पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आवाम को फिर झटका लगाने की तैयारी। अगले 3 माह के लिए बिजली 7 रुपये 91 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कीमत 5 रुपये 27 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे से परिंदा टकराने का एक और वाकया। दोहा से आने वाली गैर मुल्की परवाज बर्ड हिट का शिकार। पायलट ने जहाज को बाहिफाजत उतार दिया। पीसीबी का 15 अरब रुपए का बजट मंजूर। वाइट और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। 25 खवातीन खिलाड़ियों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बोर्ड क्रिकेट फाउंडेशन के लिए 10 करोड़ रुपए फराहम करेगा। रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।